Hello guys, welcome to MBBS Buddy, and now today's topic is supination and pronation. These are the rotational motions of the forearm. Okay, you might know about the supination and pronation movements, but along with you need to understand what are the muscles involved and what is the axis of rotation. There are certain things you need to understand for this topic. Okay, so let's start. We are going to discuss this topic under four things. Okay, first one is introduction, or what is pronation, what is supination. Okay, and along with we will also see the axis of the rotation here. Okay, axis of rotation. Then the another thing is movement, कौन सी मूवमेंट होती है. देन तो कौन सी मसल, देन द मसल इन्वॉल्व, यानी कि सुपिनेशन में कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है और प्रोनेशन में कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है. ओके, देन द लास्ट वन इज क्लिनिकल एनाटॉमी, कि इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है. ओके, यहाँ तक हो गया. सो लेट्स स्टार्ट. हियर वी गो. These आर द रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ द फोर आर्म. मैंने आपको बता दिया कि रोटेटरी मूवमेंट्स होती है किसकी, फोर आर्म की, अराउंड द वर्टिकल एक्सिस. अभी देखिए मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा कि कौन सी होती है, मतलब वर्टिकल एक्सिस कैसी. नाउ सी हियर, इफ दिस इज हैंड एंड दिस आर द फिंगर्स ऑफ योर हैंड. ओके, नाउ दिस इज फोर आर्म. ओके, this is your forearm, and now you need to understand the axis. So I'll draw it by red line. Now see here, this is the axis of the rotation. Okay, and it is rotating along like such a way. See here, और इसको हम बोलेंगे सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट. इससे रोटेशनल मोशन होती है. तो सुपिनेशन और प्रोनेशन अभी देखिए. नाउ आपको यहाँ तक कि इट इज रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द फोर आर्म और हैंड अराउंड द वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन की है, लाइन की है. ओके, ये हो गया. अभी नाउ सी हियर, नेक्स्ट पॉइंट. इन सेमी फ्लेक्सर बो द palm, if the palm is turned upward it is supination, and if palm is turned downward it is pronation. Okay, before that, what is semi flexor elbow? See here, if this is your elbow, okay, this is your elbow. See here, this is your elbow, and if your hand turns upward then it is the flexion. Okay, if your hand turns upward it is flexion, if it turns downward then it is extension. Okay, now here what it said, semi flex. Okay, तो semi flex कैसा रहेगा, ऐसा. Okay, in semi flex elbow the palm, if palm is turned upward. now see here, ये ऐसे पाम अपवर्ड टर्न हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे सुपिनेशन मूवमेंट. ये होती है सुपिनेशन मूवमेंट. ओके, और अगर मोर करेक्टली आपको याद रखना है तो याद रख लीजिए, वेन एवर द प्योर पाम इज फेसिंग टू योर फेस इट इज सुपिनेशन मूवमेंट. ओके, और डाउनवर्ड, इफ पाम इज मूविंग डाउनवर्ड और इफ पाम इज टर्न डाउनवर्ड देन इट इज प्रोनेशन. अब तक समझ गया, ये होती है प्रोनेशन मूवमेंट. Then the another point is movement are permitted at superior and inferior radio ulnar joint. देखिए सुपेरियर इंफीरियर, जहाँ पे रेडियो अल्नर जॉइंट जो होता है वहाँ पे होती है ये मूवमेंट, वहाँ पे ये परमिट होती है. ओके, नाउ देन द लेट्स स्टार्ट अबाउट हियर. वर्टिकल एक्सिस के बारे में देखेंगे अब. सी हियर, वर्टिकल एक्सिस की डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको. उससे पहले आपको समझ लीजिए कि वर्टिकल एक्सिस ऑफ मूवमेंट ऑफ रेडियस passes through the center of the head of the radius above and through ulnar attachment of the articular disc below. Yeah, now see here, see the diagram. Okay, here above it passes through the head of the radius. Here is the head of the radius. Okay, this is the vertical axis. Okay, and now below it is passing through. Now see here, attachment to the articular disc of the ulna. Now see, this is the ulna, this is head of ulna, and this is this white line you see, this is the articular disc, or here is attachment to the articular disc. Now it is passing between the head of the radius and to upward. At the upward it is passing to the head of radius, and below it passes through the attachment to the articular disc of the ulna. समझ गए यहाँ तक. नाउ इफ़ यू सी, अगर आप बोलेंगे कि सर ये तो इसकी हो रही है, तो ये वाई स्टूडेंट इट passes थ्रू द रेडियस, बिकॉज नाउ सी हियर, दिस पॉइंट इज फिक्स, this point is fixed and the movement are occurring along the radius. Now see here, this is radius and this is ulna. Okay,
this is radius, and this is ulna. Now in pronation and supination the movement occur by radius is such. Okay, so बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक सर्कल बना रहा है. ओके, तो ये सर्कल कैसा बनेगा, सी दिस विल बी द सर्कल. ओके, ये किससे बनेगा, रेडियस से बनेगा, रेडियस की मोशन से. ओके, नाउ ये अगर ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे फिक्स है तो ये इसका सेंटर पॉइंट बनेगा, और ये जो पास कर रही है ये हो गया हमारी एक्सिस. ओके, ग्रीन लाइन से अंडरलाइन कर रहा हमें, ये बनेगी हमारी एक्सिस. दिस इज द एक्सिस ऑफ द रोटेशन. समझ गया यहाँ तक. द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज the vertical axis of the movement passes through the radius upper, it passes through the head of the radius above, and below it passes to the ulnar attachment to the articular disc. Okay, ये हो गया. This axis is not fixed and stationary because the lower end of the ulna is not fixed. क्या होता है, लोअर एंड अल्ना का लोअर एंड फिक्स नहीं होता है, तो इसकी वजह से दिस एक्सिस इज नॉट फिक्स. एक्सिस क्या होती है, एक्सिस मूव टुवर्ड द लैटरली और मीडियली. अभी ये हम बात करेंगे कैसे मूव होती है. नाउ सी हियर, lower end of ulna during pronation it moves backward. Okay, backward and laterally, and during supination it moves forward and medially. So ये क्या होगा, प्रोनेशन के टाइम में क्या होगा, अल्नार एंड बैकवर्ड जाएगा और लैटरली मूव करेगा, और ड्यूरिंग सुपिनेशन क्या करेगा, फॉरवर्ड जाएगा और मीडियली मूव करेगा. लेकिन आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है इसकी वजह से एक्सिस डिस्प्लेस लैटरली इन प्रोनेशन एंड मीडियली इन सुपिनेशन. ओके, ही इज द पॉइंट, लैटरली इन प्रोनेशन and medially in supination. This is the point you need to understand. Now see here, supination is more powerful than the pronation. Why it is so? Because it is anti-gravity movement. Okay, anti-gravity movement होने की वजह से supination it is more powerful than pronation. It helps screwing object such as tightening bolts and nuts. Okay, now see here, आप सोच लीजिए कि नट और बोल्ट कैसे टाइट करते हैं, तो आपको समझ जाएगा कि कैसी मूवमेंट होती होगी. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपको नट टाइट करे या बोल्ट टाइट करे तो आपका पाम नीचे रहेगा. ओके, तो टाइट करने के टाइम में क्या होगा, आपका पाम ऊपर आएगा. आप सोच के देखिए या फिर करके देखिए, आपको समझ जाएगा. ओके, ये हो गया. एंड मॉर्फोलॉजिकली बोथ मूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पिकिंग एंड टेकिंग ऑफ द फूड इन माउथ. कि फूड को हाथ में पकड़कर खाने के लिए दोनों मोशन जरूरी है. कौन सी, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन. ओके, नाउ सी हियर, नेक्स्ट थिंग इज मसल इन्वॉल्व. कि कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है, प्रोनेशन में कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है और सुपिनेशन में कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है. तो इन प्रोनेशन इट इज़ वेरी इजी टू लर्न द मसल्स इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ इट्स नेम इट सेल्फ, कि क्या क्या होती है. चिपली बाय प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड एडेड बाय प्रोनेटर टेरिस. तो प्रोनेटर टेरिस कब आएगी, व्हेन द मोशन इज रैपिड, कि जब मोशन बहुत ही रैपिड, प्रोनेशन बहुत ही रैपिड हो रहा है तो प्रोनेटर टेरिस आएगी. और मेनली मसल कौन सी, हमारी प्रोनेटर क्वाड्रेटस. तो कौन सी दो मसल होगी, प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड प्रोनेटर टेरिस. प्रोनेशन से क्या याद आया, प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड प्रोनेटर टेरिस. ओके, यहाँ तक समझ गए. एंड ग्रेविटी ऑल्सो हेल्प इन दैट प्रोनेशन. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज सुपिनेशन. इन सुपिनेशन the muscles involved are supinator and bicep brachii. The supinator, when the action is slow, when the motion is slow and elbow is extended, then it is supinator muscle. And when the motion is rapid and elbow is fixed, then it is bicep brachii. See here goes the last point of our clinical anatomy. Okay, then first one is during the supination radius and ulna are parallel to each other. देखिए क्या होता है, रेडियस और अल्ना एक दूसरे को पैरेलल होते हैं. ये हो गया रेडियस और ये हो गया अल्ना. सुपिनेशन के टाइम में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल होते हैं. लेकिन प्रोनेशन के टाइम में क्या हो जाता है, सी हियर, ड्यूरिंग प्रोनेशन रेडियस क्रॉसेस अल्ना. नाउ सी हियर, देखिए अभी ये तो एकदम फिक्स पोजिशन है. ओके, ये पोजीशन फिक्स है क्या, रेडियो अल्नार जॉइंट की. तो ये हो गया हमारा, ये देखिए अभी ये पोजीशन फिक्स है, ये हो गया हमारा रेडियस, ये हो गया हमारा अल्ना. तो रेडियस कैसे मूव करेगा, रेडियस ऐसे मूव करेगा. ओके, तो ऐसे मूव करके जब ये ऐसे यहाँ पे आएगा तो ये अल्ना को क्रॉस करेगा. ये कौन सी होगी, ड्यूरिंग प्रोनेशन. समझ रहे हैं आपको, ये मोशन हो रही है प्रोनेशन में ऐसे टर्न हो रहा है. ओके, ये हो गया दूसरा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. एंड द थर्ड वन इज pronation is not possible in synostosis. Okay, what is synostosis? It is the fusion of the head of radius and ulna. Okay, जब हेड ऑफ रेडियस एंड अल्ना फ्यूज हो जाता है एक दूसरे के साथ, देन क्या पॉसिबल नहीं है, देन ये पॉसिबल नहीं है क्या, प्रोनेशन इज नॉट पॉसिबल देयर. ओके,
Thank you for watching, and if you like the video, then please press the like button and subscribe for more videos. Okay, thank you so much.